So, good evening, friends, and welcome. Today is our, I think, today is 20th lesson, Ashad. Yes, it is the 20th lesson of our ongoing KP course, and we've started with profession. I think two classes, दो lessons हमने profession के ऊपर कर लिए हैं. Today will be the third, and one or two more lessons आज के बाद फिर हम लोग profession पे करेंगे. Profession पे करेंगे. Today we'll of course see jobs, job through natal हमने किया, then job through horary करना है, एक दो jobs करेंगे, then we'll take up issues connected with profession. ऐसे issues connected with profession में transfer हो सकता है, problems in career हो सकता है, suspension हो सकता है, dismissal हो सकता है, etc., etc., and whatever other problems that are faced, pertaining to profession, all that we'll take up. तो आज हमने एक दो चार्ट्स दिए हैं जिसमें से कि एक चार्ट नेटल है और एक होररी भी है, and maybe one or two more, so depending on how much time we have. हम लोग के classes, ideally I would like our class to be 1 hour, but it stretches beyond one से करीब वो 1.5 घंटा हो जाता है, थोड़ा सा overwhelming हो जाता है 1.5 घंटा. I can see some people getting very tired, and at times I also find it. Anyway, let's तो screen share कर रहा हूँ और देखिए somehow I get the feeling कि आप लोग videos तो देखते हैं, I don't know पूरा फिर से सुनते हैं कि नहीं, शायद आपको इसकी जरूरत नहीं महसूस होती हो. At least देखिए और उस हाउस ग्रुपिंग को पढ़िए. हाउस ग्रुपिंग को जानना पढ़ना बहुत जरूरी है. हाउस ग्रुपिंग में like profession itself, there will be a number of houses involved, जो कि आज हम एग्जाम्पल से देखेंगे. नंबर ऑफ हाउसेस इन्वॉल्व फॉर वेरियस थिंग्स, एंड फिर प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट all the 12 houses will be connected with profession relating to some matter or the other. Getting a job, losing a job, changing a job, suspension, resignation, dismissal, getting a good job, a satisfaction, getting a menial job with low income, all that. So almost all the houses are connected. So group housing, you please, at least the important topics, उसके group housing को लोग आप लोग उसका clarity mind में कर लीजिए. And I don't exactly know कि basics आप लोगों का बिल्कुल clear हो गया है कि नहीं. Basics, if I ask you which is the Mahadasha cycle, which Mahadasha follows which Mahadasha, अगर नहीं किए हैं आप लोग तो, and especially that constellations किस राशि में किसका स्टार है, किस planet के constellation से किस planet के स्टार है. I don't know whether वो आपने सब उसको you've made a mental note of it by looking at the horoscope. Whether now you can point out, okay, this planet star is in this rashi. वो सब अगर नहीं किया है तो now we are through with the 2/3 of the course. Just about one third is left. So hopefully by the time we end, I hope ऐसा नहीं कि कहीं basics में कमी रह जाए तो फिर problem होता है. So anyway, चलिए, we'll have a revision class. One of these days we'll have a revision class, and I'll devise a test. एक test भी devise करूँगा शुरू से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, and we'll see where we stand. So anyway, regarding this profession, I'm opening a screen, उसको हम discuss करेंगे.
स्क्रीन खुल जाएगा तो बताइएगा। आ गया। आ गया ना? ओके, नाउ दिस इज अ नेटल चार्ट। नेटल चार्ट है, और this is a chart of a native, a boy who was already in a job. ठीक है, who was already in a job and not very happy with the job. So he was quite a brilliant student also, and he had appeared for 2-3 interviews, and he was sort of had been given assurance by one or two of the companies that he's going to get the job. So he had put in his resignation also with the present employer. So he wanted to know by when, he is going to receive the appointment letter, या फिर कब तक उसका job लगेगा. तो ये उसका natal chart है. Okay, ये उसका natal chart है, and इसको हमने take up किया था. I think it was October 2011. Okay, and particular I have removed the name. All the other particulars are given here. I have removed the name. देखिए, ये हमने लिखा है, the chart is in front of you. Significator tables, everything is in front of you. The narration is the boy was already in a job but was not satisfied with it and had given 2-3 interviews and was waiting for a call up. He had also submitted his resignation and was serving his notice period. What was involved here was leaving a job and getting a new job up to his expectation. Ye iska, the heading is, when will I get a good job? The call was expected any day. The question was asked on 30th of October 2011. Okay. So now, ab bataiye mujhe ke I was talking about the house grouping thing. Now this is a case where, somebody is already in a job. कल मैंने एक horoscope बोला था कि आज discuss करूंगा, उसमें भी leaving job and then doing job and business simultaneously. But I have उसको हमने रोक लिया है, उस horoscope को नहीं discuss कर रहे हैं, because that's a very interesting horoscope. उसमें उसको हमने रखा है end के लिए, when we are going to discuss how to judge or how to analyze an entire horoscope. So उसको हमने इसलिए रोक लिया है. Anyway, so now when we are looking at, somebody who is already doing a job, he has resigned, or he is planning to leave, or already left that job, or on the verge of leaving that job and expecting to get another job. तो उसमें मुझे ये बताइए आप लोग कि which will be the houses involved, the houses that will have to act in tandem, एक साथ synchronize होकर के. Houses in tandem means कि किस हाउस के सिग्निफिकेटर की दशाएं चलेंगी एक साथ में. दशाएं एक साथ में चलेंगी, so that change of job also takes place and a new job also comes up. So which are the houses we are going to look at simultaneously? Can anybody tell me? If you've been listening, if you have studied the house grouping, if you have gone through the write up on profession, अगर आपने write up on profession ठीक से पढ़ा होगा, then I think you should be able to answer the question. बताइए. Sir, 2, 6th, 5th, 9th and 10th. And if desired job, it is 11th. Okay. 2, 6, 5, 9, 10, 11. 9, 10, 11. ठीक है. एक हाउस आप मिस कर रहे हैं. जी. 1. Please mute कर दीजिए. Please mute your audio. हाँ, ठीक है. 1, 5, 9, 2, 6, 10 and 11. You tell me the logic, the rationale behind this. Why? If somebody is already doing a job, अब आप छोड़ दीजिए ललित जी, आप मत बोलिए. जी. Let somebody else tell me. Okay.
Why should 159 come into the picture? Can anybody, कोई और मुझे बता सकते हैं क्या? Why should 152 तो हम समझते हैं कि नौकरी मिलती है 26. 159 आपकी नेगेटिंग हाउसेस, So तो उसको जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लेना है. 159 नेगेट करेगा जब वो प्ले करेगा, तभी वो छोड़ करके दूसरा जॉब लेंगे और 2610 से दूसरा जॉब मिलता है. और अगर 11 इन्वॉल्व होगा तभी जो है आपके मन मुताबिक you know the job of your choice, of your liking is going to come your way. Okay, so all these significators have to act in tandem, तभी it is possible. ये आपके सामने है. अब आप मुझे बताइए, जब जब रूलिंग प्लैनेट्स भी आपके सामने है, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑलवेज टू यूज रूलिंग प्लैनेट्स. यूज देम when required, when you are in a fix, जब आपको चूज करना है वो करना है. अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था 3010, इसका राइट अप है नीचे में, वो आपको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई वांट यू ऑल टू सी दिस एंड प्रेडिक्ट. ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे, आई उसको रीड आउट कर देंगे. जब 3010-2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपके सामने दशा टेबल सारे हैं. What was the dasha running 3010-2011 को? महादशा कौन सी चल रही थी? मार्च. सबके सामने डेट्स दी हुई है. These are the दशा टेबल्स. ये देखिए बीच में ये दशा टेबल्स हैं, सारे ये दशा टेबल्स हैं. अलग अलग क्या है? म्यूट करके बात कीजिए. म्यूट कर लीजिए, फिर बात कीजिए. जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए. बहुत डिस्टरबेंस होता है एवरीडे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और फिर वो कंसंट्रेशन भी टूटता है. बताइए कौन सी 30-10-11 30th of October 2011 तो कौन सी दशा चल रही थी? मार्स. हाँ, मार्स, मंगल. देखिए और देखिए ठीक से. मून. मून चल रहा था. ठीक है, मून के सामने डेट्स देखिए 5/11/2011, 5/11/2006, 6/11/2011. सो जब ये पूछा गया था तो मून में सन में वीनस चल रहा था. मून में सन में वीनस में केतु चल रहा था. और वो कब तक चलना था? मून की महादशा देखिए कब तक चलनी थी. अच्छा, 5/11/2011 उसके बाद मार्च शुरू हुआ. हाँ नहीं, कब तक चलना था? 5/11 तो आप ऊपर की डेट पढ़ रहे हैं, कब तक चलना था? दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. आप जब प्रेडिक्शन करेंगे ना तो ये दशा टेबल्स तो आपको पढ़ना जानना पड़ेगा. दशा टेबल्स तो पढ़ना आपको जानना पड़ेगा ना. Do you all have a clear handle on the dasha tables, how to read? ये क्या है? ये देखिए मून, ये डी जो लिखा रहता है ये ऊपर क्या है? ये दशा डी का मतलब क्या है? दशा. बी का मतलब भुक्ति. दशा को हम लोग नॉर्थ इंडिया में महादशा करते हैं, कहते हैं. ये साउथ इंडियन है, ठीक है. दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राण. तो ये दशा किसकी चल रही थी? मून की. भुक्ति किसकी चल रही थी? सन की. अंतरा किसका चल रहा था? वीनस. वीनस, सूक्ष्म केतु और प्राण. बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं इस पीरियड में. ठीक है, आप लोग म्यूट नहीं कर रहे हैं. आई डोंट नो फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू यू ऑल. समबडी इज नॉट म्यूटिंग हिज ऑडियो. If there is a problem in the system, then I can appreciate. But ऐसा तो प्रॉब्लम होता नहीं है. You just have to
क्योंकि मैं आप लोगों के वीडियोस को ऑफ कर देता हूँ जब मैं करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं नहीं कर, फ्रॉम माई एंड आई कांट डू इट, अदरवाइज आई हैव टू लीव द स्क्रीन एंड देन। तो आप लोग से ही अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट, डोंट, आपको जब बात करना होगा तो अब अनम्यूट कर दीजिएगा। अब चलिए, एनीवे, मून की महादशा में अब आप मुझे बताइए कि ये जॉब हो सकता था कि नहीं हो सकता। इसको देखिए, मून को क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेटर टेबल्स में मून क्या दिखा रहा है? मून 8 दिखता है और 6 भी। 6 तो नौकरी का घर है ना, 6 is the house of job, so moon could have very well given the job, okay, जॉब दे सकता था मून, बट मून को हम लेंगे कि नहीं लेंगे? बिकॉज देखिए, जब 30-10-11 को सवाल हमसे पूछा गया तो मून की महादशा was going to last only up to 7/11/2011. That means only for 8 days moon was there. Moon mahadasha was there till only 8 days. हमने लिखा है the call of नौकरी का call, he had told me was expected any day. आज भी जिस दिन किया उस दिन भी आ सकता था, 10 दिन के बाद भी आ सकता था, महीने के बाद भी आ सकता था, 2 महीने के बाद भी आ सकता था। So we had 7 days, 8 days and 8 days मेरे पास था जिसमें कि मून was quite capable of giving the job. क्यों कि मून महादशा लॉर्ड जो है ना, वो खाली एक रास्ता बिछाता है. It doesn't have to be an A level significator. Even if it is a B level, a C level, a D level significator, we say that the Mahadasha is allowing the event to happen. और बाकी अगर आप देखेंगे, सन को देखेंगे, वीनस को देखेंगे, केतु को देखेंगे, if you look into the significator tables, all of them are capable of giving jobs, all these three. And then प्रत्यंतर दशा के कॉम्बिनेशन में सारे जो हैं मिल करके जॉब दे सकते हैं. देखिए, आपको देखना है सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर, सन है, वीनस है, यहाँ सन वीनस की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, ठीक है. 6th हाउस का देखिए, केतु है, केतु भी चल रहा है. 10th हाउस का देखिए, 10th हाउस का देखिए, जुपिटर है, जुपिटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जुपिटर यहाँ आ जाएगा प्रत्यंतर में, तो जॉब तो मिल ही सकता था. तो क्या इस 7 डेज में जॉब मिल सकता था कि नहीं? हम इस 7 डेज को चुन सकते हैं कि नहीं? मून, दिस इज अ टच एंड गो. नाउ एज एन एस्ट्रोलॉजर वी हैव टू टेक अ कॉल कि ये 7 डेज में क्यों नहीं नौकरी मिलेगी. व्हाट इज द गुड एंड व्हाई नौकरी कैनॉट बी गॉट इन दीज 7-8 डेज जो कि हमारे पास अवेलेबल है, या मिलेगी? बोलिए ना, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो बोलेंगे, सीख ही तो रहे हम लोग. मून की महादशा को हम कंसिडर करेंगे जॉब के लिए कि नहीं करें? मून का सबलॉर्ड भी देख लीजिए, जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर इज सिग्निफिकेटर ऑफ द 10th हाउस. तो सर मून तो काफी स्ट्रांग है जॉब देने के लिए. नहीं सर, मून 6th बी दे रहा है, लेकिन हाँ, 8th ए दे रहा है वो और कोई बात 12th नहीं, वो कोई सी बात दे रहा नहीं. है. देखिए, महादशा लॉर्ड है, वो 8th भी दे रहा है, 12th भी दे रहा है, कोई बात. वो 8th और 12th डिनायल नहीं है, ठीक है, नॉट डिनायल. डिस्टर्बिंग है. डिस्टर्बिंग है, ठीक है. हमको महादशा लॉर्ड, हमने बोला ना, महादशा लॉर्ड अगर एक सुराग भी दे देता है तो महादशा लॉर्ड हम ले लेते हैं. काम तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म को और प्राण को करना है. महादशा लॉर्ड अपने आप में बहुत स्ट्रांग है तो वेरी गुड, बट अगर इफ द महादशा लॉर्ड इज जस्ट
महादशा लॉर्ड का रूल ये है कि अगर वो खाली डिनाई नहीं कर रहा है, इवन इफ इट स्टेज न्यूट्रल, देन वी कैन कंसिडर कि महादशा में काम हो जाएगा, हो सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक नियम है, हमने वैदिक में भी आपको पढ़ाया है यही चीज, और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। महादशा का काम ये, अगर मून अगर सीधे खाली 5th को दिखाता, 9th को दिखाता, 1st को दिखाता, तब हम कहते कि और 2, 6, 10 को नहीं दिखाता, तो हम कहते कि ठीक है, मून इज रूल्ड आउट, मून रूल्ड आउट हो गया। लेकिन यहाँ मून हमें 6th दे रहा है और थ्रू इट सब लॉर्ड 10th भी दे रहा है, तो हम मून की महादशा में इसको नौकरी लग सकती है कि नहीं लग सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सही। How are we going to decide whether we are going to consider this Mahadasha of Moon, the remaining 7-8 days, wherein this boy can get a new job or not? What is the criteria for us to decide? हमको we have to take a call on Moon. Sun, Venus, केतु तो बहुत strong significators हैं, ये भी हमने आपको वो दिखाया। 11th को इन्वॉल्व नहीं करता है मून। हाँ मून 11th को मून 11th का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, आप खाली बोलो। मून हमने बताया ना, महादशा लॉर्ड किसी को नहीं भी इन्वॉल्व करता है, अगर डिनाई नहीं करता है तब भी हम वी कैन टेक इट एज इस पीरियड में काम हो सकता है। बट आई एम आस्किंग यू, मून इज सिग्निफाइंग 6th, 11th को नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, वीनस 11th को कर रहा है, एंड 11th का कोई जरूरी नहीं है जॉब में पार्टिसिपेट करना। 11th में कोई जॉब में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। वैसे 11th को आप बोल रहे हैं तो देखिए वीनस का सबलॉर्ड सैटर्न है, ठीक है, वीनस का सबलॉर्ड सैटर्न है, तो 11th इन्वॉल्व हो जाएगा वीनस को अगर हम कंसिडर करेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मून। हाउ टू डिसाइड वेदर अ प्लैनेट वी हैव टू, अब हम बहुत बड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, सब हाउ टू लोड डिसाइड कि इस प्लैनेट को हम ले कि नहीं लें। मून सब लोड लग गया ना सर। इट इज, ये हमको टेम्प्ट कर रहा है, इट इज अ टेम्प्टर। जुपिटर 10 दे रहा है। जुपिटर 10th दे रहा है, अब मून मून तो मून बहुत सब, अच्छे से दिखा रहा है 10th को। जी जी, मून सब लोड जो है वो जो दे रहा है। हम्म, सर मून में एक तो 7 ही दिन बचा है, ऑल्दो वो दे रहा है लेकिन वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं आ रहा है। मैं नहीं सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा सा लाउडली बोलना होगा। अर्पित बोल रहे हैं ना, थोड़ा लाउडली बोलिए, थोड़ा जोर से। सर मून क्योंकि टेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उसके एक तो 7 ही दिन बचे हैं और वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, व्हिच इज सेइंग दैट बस मे बी वी रूलिंग शुड प्लैनेट, दिन 2 भी बचे हैं तब भी हो सकता है। रूलिंग प्लैनेट यहाँ लिख दिया ना हमने, आपके लेफ्ट देखिए रूलिंग प्लैनेट, क्या रूलिंग प्लैनेट में मून है? और ये आपने ठीक पकड़ा, 7 डेज बचे हैं, तो इसीलिए हमको देखना है कि मून में होगा कि नहीं होगा। तो मून रूलिंग प्लैनेट में नहीं आता है, और चूंकि 7 डेज सिर्फ बचे हैं तो हम मून की महादशा को छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ गए, क्लियर हो गया ना? मून इज बरोबर। नॉट वन ऑफ द रूलिंग प्लैनेट्स, सो वी विल रिजेक्ट मून। अगर मून मान लीजिए कि अगर 2 महीने रहता, तब हम रूलिंग प्लैनेट्स को देखने की आवश्यकता भी हमको नहीं थी। और मून अगर इतना स्ट्रांगली 10th को करता है, 6th को कर रहा है, 10th को कर रहा है, मान लीजिए 2 महीना हमारे पास मून 2 महीना चलना था, वी वुड हैव सेड कि मून की महादशा में जॉब मिल जाए। एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस क्या है? Extraneous circumstances which are helping us, that the boy has already submitted his resignation and he is confident that he is getting a call from one of the companies. Only then he has given his resignation, and the call can come any day. Any day में तो 7 days खाली moon का था, that is why we had to resort to ruling planets to see। 7 days तो टच एंड गो होता है ना, आप जब तक वो आया आपके पास, आपने देखा, तब तक तो 1 दिन निकल गया, उसके बाद 6 दिन बचता है। तो हमको देखना है मून भाई रूलिंग प्लैनेट्स में है कि नहीं है।
रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो हम मून को छोड़ देंगे, क्योंकि मून खत्म हो जाएगा 7/11/2011 को मून की महादशा खत्म हो जाएगी। मून के बाद कौन सी महादशा शुरू होती है? मार्स। मार्स। मार्स आती है। ठीक है, फिर मार्स जो है, मार्स की महादशा शुरू हुई। ठीक है, मार्स की महादशा शुरू हुई। अब मार्स में मार्स की महादशा, मार्स में मार्स चलना है 4/4/2012 तक। ठीक है, 4/4/2012 तक मार्स चलना है। अब देखिए मार्स हमें है, हमारे लिए हेल्पफुल है। मार्स एज दी महादशा लॉर्ड, मार्स क्या क्या दिखा रहा है? मार्स नरेशन, फर्स्ट हाउस नरेशन दे रहा। हाँ ठीक है, वो भी तो चाहिए ना, वो भी तो चाहिए ना जी हमें। जी 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 जी। और क्या दे रहा है? 6D दे रहा है, 6D। हाँ 6 दे रहा है। आप यूं फॉलो कीजिए, देखिए पहले ए कॉलम को देखिए, फिर बी को देखिए, फिर सी को देखिए, फिर डी को देखिए। फर्स्ट दे रहा है, चलिए देख लिया आपने। अब उसके बाद बताइए। उसके बाद 9 को दे रहा नाइन्थ 9 भी बी। तो चाहिए ना, 9 भी हमें हाँ चाहिए। जी। ठीक है, और क्या दे रहा है? थर्ड सी। थर्ड फोर्थ मतलब वो नेगोशिएशन चिट्ठी आना वाना होता है। ठीक है, थर्ड होता है। उसके बाद और क्या दे रहा है? फर्स्ट दे रहा है और सिक्स्थ भी दे रहा है। 6D फर्स्ट भी दे रहा है, सिक्स्थ भी दे रहा है। ठीक है, 6D तो वीकली। हाँ ठीक है, वीकली दे रहा है। अभी हम सबलॉर्ड पे नहीं गए हैं। ठीक है, तो इतना ही काफी है। देखिए फर्स्ट दे रहा है, फर्स्ट हमें चाहिए। 9th हमें चाहिए नौकरी छुड़वाने के लिए, और हमें 6th भी चाहिए नौकरी दिलवाने के लिए। ठीक है, तो मार्स, वी कैन सेलेक्ट मार्स, कर सकते हैं ना। मार्स की महादशा अब अप्रैल तक चलनी है। ठीक है, अप्रैल 2012 तक। तो मार्स हमने एज अ महादशा लॉर्ड सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और मार्स में मार्स की अंतरदशा भी हम सेलेक्ट कर लिया हमने। मार्स की अंतरदशा, बिकॉज मार्स इज सिग्निफाइंग सो मेनी, Mars is signifying so many houses which are the signifying houses. Mars we have selected. Mars में Mars भी हमने select कर लिया। Mars में Mars select करिए। Mars का सबलॉर्ड कौन है? देखिए Mars का सबलॉर्ड कौन है? राहु। 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 राहु क्या क्या दे रहा है? Now remember, Mars will do everything that Rahu does. ठीक है, Mars will do everything that Rahu does. तो राहु क्या दे रहा है? फर्स्ट दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है। और राहु क्या देगा? फोर्थ बी। ठीक है, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु इज रिप्रेजेंटिंग विच प्लैनेट? राहु रिप्रेजेंट्स जुपिटर। जुपिटर इज सिग्निफाइंग 10th। ठीक है, तो मार्स में मार्स हमने सेलेक्ट कर लिया। मार्स में मार्स के बाद फिर राहु की प्रत्यंतर दशा आती है। तो मार्स में राहु प्रत्यंतर दशा भी हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ हमें क्या क्या मिल गया है? मार्स के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं, 1 है, 6 है, 9 है। ठीक है, और राहु के थ्रू 10 है, फिर 1 है। तो हमें 1, 6, 9, 10 के सिग्निफिकेशंस तो हमें मिल गए। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दी सूक्ष्म दशा। अब बचता कौन कौन सा हाउसेस हमारे पास? कौन कौन से हाउसेस चाहिए हमें? हमें 1 मिल गया, 6 मिल गया, 9 मिल गया, 10 मिल गया। 11th। हाँ, कौन कौन से हमें चाहिए? पहले नौकरी गिविंग हाउसेस बोलिए, नौकरी लेने वाले, नौकरी देने वाले कौन कौन से मिसिंग है? लिस्ट क्या बनाई थी हमने? 1, 5, 9, 2, 6, 10, 11। तो उसमें हमें मिल गया, 1 मिल गया है, 6 मिल गया है, 9 मिल गया है, 10 मिल गया है। अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए, हमें 5 चाहिए, और हमें 11 चाहिए। ठीक है, और राहु के बाद वीनस की
सूक्ष्म आती है, वीनस की सूक्ष्म आती है, ठीक है। Venus to वीनस की सूक्ष्म भी आता है, लेकिन उसके बाद सन के सूक्ष्म भी तो हम चुन सकते थे। वीनस के बाद सन का सूक्ष्म आता, वो भी हम चुन सकते थे, वो टेबल हमने इसमें नहीं दिया है, क्योंकि सन और वीनस दोनों सेकंड और फिफ्थ को सिग्निफाई कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। We could have chosen sun also. We could have chosen, but why we have why I have chosen Venus? it is strongest It is the strongest ruling. Ruling planet. ruling planet. So we have chosen Venus. ठीक है। तो अब हमें क्या क्या मिल गया? अब हमें मिल गया आपका 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो हमें मिल गया 1 2 5 9 10। और वीनस का सबलॉर्ड कौन है, देखिए जरा, वीनस का सबलॉर्ड Saturn. सैटर्न। तो सैटर्न 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो हमें 11 भी मिल गया। अब कौन सा घर रह गया है हमारा? 6 हमें मिला है, लेकिन रिमेंबर 6 मार्स जो है ना, वो सी लेवल का सिग्निफिकेटर है। 6 अभी हमें नहीं मिला है, 6 अभी हमें नहीं मिला है। सिक्स कौन दे रहा है हमें? सबसे स्ट्रांगली 6 कौन दे रहा है? केतु। केतु। तो ये नीचे सबसे देखिए लाल में जो हमने फेंस बनाया हुआ है, मार्स मार्स राहु वीनस केतु 3/12/2011, और ऑल ऑफ देम आप रूलिंग प्लैनेट्स की लिस्ट से मिला लीजिए, लेफ्ट साइड में रूलिंग प्लैनेट्स की लिस्ट से मिला लीजिए, ऑल ऑफ देम आर रूलिंग प्लैनेट्स। केतु प्रेजेंट है, वीनस के साथ है। All of them are ruling planets. You can verify their sublords also. आप लोग कर लीजिएगा sublords को verify. All are positive only. None of them are. There is a question. वीनस को जैसे हमने लिया था तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट माना था हमने, हाँ जी। लेकिन साथ में केतु भी दे रखा है। मैं बोला क्या केतु को प्रेफर नहीं करना चाहिए? हाँ, केतु को वीनस पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, केतु क्यों मिलेगा? आरपी में नहीं, देखिए ऐसा है ना, केतु अगर देखिए, केतु अगर डायरेक्टली आएगा ना, जी अगर केतु डायरेक्टली आएगा जी तो मिल सकता है, बट केतु हैज कम, केतु आया है, और अगर आप वीनस को नहीं चुनेंगे तो आपको फिर जो है ना, आप सैटर्न आपको 11th हाउस नहीं मिल रहा है, ठीक है। और केतु इनडायरेक्टली आया है, केतु एंड राहु बोथ हैव कम इनडायरेक्टली। अगर केतु डायरेक्टली आया होता तब आप बोल सकते थे, एंड वीनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आरपी रूलिंग प्लैनेट। तो हमने वीनस को चुना, ठीक है, इसलिए हमने वीनस को चुना, और हमने आखिरी में प्राण दशा केतु की चुनी, जो कि हमें 6th दे रहा है। 6th भी दे रहा है केतु, हमें 10th भी दे रहा है केतु, ठीक है, 6th भी दे रहा है, 10th भी दे रहा है, और केतु का सबलॉर्ड राहु है, तो फिर से 10th दे रहा है। सो वी आर कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। तो दिस वाज माय कैलकुलेशन, और इसको हमने फिर उस लड़के को बताया कि देखो राउंड अबाउट ये 2-3 तारीख के आसपास, 2-3 तारीख के आसपास आपको खुशखबरी मिलनी चाहिए दिसंबर में, और ये करीब करीब प्रेडिक्शन ठीक ही निकला था, ठीक है। तो ये देखिए, इसका राइट अप हमने नीचे लिख दिया है आप लोगों के लिए, बट आई वांट यू ऑल टू डू इट, इसीलिए जो है मैं इस तरीके से करता हूँ। देखिए राइट अप में हमने लिखा है, इन सच केसेस where a change of job for a better and desired job is to be predicted, the significators of 1 5 9 2 6 10 and 11 will have to act in tandem. The question was asked on 30 11 2 10 होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया 30, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा।
30/10/2000, native was expecting a call up any day as he had appeared for some 2-3 interviews and had been assured of an appointment soon. In fact, he had already tendered his resignation to his present employer and was serving the notice period. The Dasa running at the time was Moon, Sun, Venus and was to run up to 7/11/2011. That is for another 8 days from the question date. Moon, Venus, Sun are all connected to the relevant houses. Moon 6/9, Venus and Sun 2/5. With the help of Sukshma and Pran Dashas, the result could come about, but it is difficult to be sure. So what to do? So when in doubt, resort to the divine help of ruling planets. Moon, the Mahadasha Lord, was not appearing as an RP, so I rejected it. It is not always mandatory to use RPs, but when the intervening period is very short and you have a doubt, our RPs will always help. Next Dasha was Mars, and its bhukti of Mars was to run up to 4/4/2012, which was sufficiently enough time for the result to happen. So I selected it, Mars 13469 at the stellar level, 10 as it is untenanted, CSL of 10th cusp. ये miss कर गए हम. It is also the untenanted cuspal sublord of the 10th cusp, and through it sublord Rahu 1/4/10. So Mars, the Mahadasha Lord, signifies 1, 9, 10 very strongly, and 6 with some medium strength. Mars number 5 and Mars Rahu was to run up to 8/12/2011, and I selected this as Rahu was signifying 10th through its sublord Jupiter. So now I had significators 1, 9 and 10 in strength and medium strength, signification of 6th also. Next I selected Mars, Rahu and Venus Sukshma as it appeared as the strongest RP out of a number of RPs, oblique significators that were capable of giving the result, and also because the sublord of Venus is Saturn, significator of the 11th, which gives a job of choice. This period was up to 3/12/2011, so event could happen around this date in the Pran Dasha of Ketu, which fell on the same date. Venus 2, 5 and 11 through sublord Ketu, which 6. So Mars, Rahu, Venus, Ketu give us all the required houses as per the grouping rules of KP, that is 1, 5, 9, 2, 6, 10 and 11. The appointment letter was received on the predicted date. देखिए, this is जिसको बोलते हैं आप लोग ना, ये तो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं. आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स आप लोग बोलते हैं सेपरेटली केपी में. दिस इज ऑल टाइमिंग ऑफ इवेंट. दिस इज ऑल टाइमिंग ऑफ इवेंट. अच्छा, और ललित जी आप जो पूछ रहे थे, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आप कुछ केपी बुक्स में अगर पढ़िएगा ना, तो whenever Ketu and Rahu, you know, they come as ruling planets, you know, if they are representing some planet, तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं कि आप फिर वीनस को कंसिडर ही मत कीजिए. हाँ, वो कह रहे केतु राहु के तो प्लेसेस वीनस, दैट इज नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल. यहाँ पर बिना वीनस के तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती थी. जी. केतु विल नॉट गिव यू. वेयर इज सेकंड कहाँ से आएगा? So you have to use your common sense. ठीक है? So that is, I don't know how कैसे बोल, मैंने भी देखा है. So that is what where you are coming from. I am not saying कि I may always be right. There will be, you know, कभी इधर उधर एक आध rules इधर उधर थोड़े बहुत tweak करने पड़ते हैं. जैसे ये लॉजिकल है, ये जो आपने बताया ये लॉजिकल है. And logical and common sense. See, is the biggest technique in astrology, in KP also, in any astrology. Logic, common sense and extraneous factors हमेशा आपको help करेंगे. Extraneous factors. वैसे तो बहुत सारे superstitions में हैं, वो बोलते हैं omens हैं कि कब आपको question judge करना है. You know, जैसे हम बोलते हैं ना, कहावत है तो कि आप जज करने जा रहे हैं, किसी ने छींक मार दिया तो स्टॉप कर जाइए. एक्चुअली में ये सब मान्यताएं हैं, तो यूं ही नहीं है. देयर हैज टू बी सम साइंटिफिक बेसिस जो कि हम लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं. तो ये है ओमेन्स होते हैं, गुड ओमेन, बैड ओमेन, एंड लॉजिक एंड कॉमन सेंस एंड रैशनल यू हैव टू ऑलवेज अप्लाई. ठीक है? एंड नॉट एज पर योर कन्वीनियंस. ये आप देखिएगा, आप अगर ये इस रूल को फॉलो करें कि आप उनके हिसाब से, ये आपको वीनस और मार्स दोनों को गायब कर देना है.
तो वीनस मार्स गायब कीजिएगा तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। और एक्सट्रेनियस फैक्टर्स आपको देखना है। You know your client. He is a brilliant student. He is already in a job. He has submitted his resignation. He has appeared for 2-3 interviews. You know him as a student, and he has submitted his resignation. He has been assured by some company, 1 or 2 companies, that he'll get. But he wanted to know कि choice job कब मिलेगा, कब उम्मीद है choice job मिलने की। जॉब तो उसको जो वीनस और सन के बीच में हमने बोला, हम वीनस को छोड़ के हम सन की भी सूक्ष्म ले सकते थे। व्हाई नॉट? सन भी जो है रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है। सन भी सेकंड को सिग्निफाई कर रहा है, सन फिफ्थ को भी कर रहा है। इट इज सिग्निफाइंग बोथ वीनस एंड सन दे आर सिग्निफाइंग, दोनों के सिग्निफिकेशंस हैं सेकंड ऑफ। वी कुड हैव चोजन सन, बट व्हाई? द रूलिंग प्लैनेट्स का जो रूल है, यू हैव टू पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, ठीक है। सन का भी सबलॉर्ड राहु है, तो उसको नहीं पिक करने का एक कारण ये भी था, वीनस हैड टू बी पिक्ड because see Saturn is not appearing as a direct significator, neither is it a ruling planet, so it has to play a supporting role. Since it is the sublord of Venus, we had to pick Venus. तो 11th हाउस चॉइस का जॉब कैसे मिलेगा? जब तक 11th हाउस का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, बिकॉज सैटर्न कहीं आ भी नहीं रहा है दशा अंतर दशा में हमारे, ना डायरेक्टली जो है सिग्निफिकेटर 11th का है, बट इट इज नॉट अ रूलिंग प्लैनेट अगेन, एंड इट इज नॉट फिटिंग इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स। You cannot choose, this Mars, Sun, Venus, Ketu, Saturn. You cannot choose because Saturn is not a ruling planet. ठीक है? So ऐसे जज करना है। Any questions in this? तो इसका आप फोटो खींच लीजिए अगर चाहें तो। जी, हो गया। And देखिए कभी कभार you have to tweak some rules when you know the client, when you have a good idea of when the event is likely to happen, then and कोई एक अगर प्लैनेट किसी चीज को स्लाइटली या स्ट्रांगली नेगेट कर रहा है एक पॉइंट पर और 3-4 जगह से बहुत स्ट्रांगली फेवर कर रहा है, then you have to make a judgment. And extraneous factors में then you should be knowing, yes, round about किस टाइम में एक्सपेक्टेड है। हाँ, जहां आप ना क्लाइंट को जानते हैं, ना एक्सट्रेनियस फैक्टर्स मालूम है कि हाँ कहाँ उसने कब इंटरव्यू दिया है क्या। इफ इट्स जस्ट क्वेश्चन कि हमें नौकरी कब मिलेगी या सूटेबल नौकरी कब मिलेगी, देन आपको अपने हिसाब से फिर जो रूल्स हैं उसको फॉलो करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट पे आना है। कई बार एलिमिनेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर वीनस के जगह जो है, वीनस के जगह अगर हम सन को चुन लेते, मान लीजिए सन को चुन लेते, तो भी देखिए रिजल्ट इनको सन को चुनते तो रिजल्ट तो इसको मिल गया 3 तारीख को नौकरी मिल गई, तो सन की फिर जो है ये सन के हिसाब से ये मान लीजिए थोड़ा सा 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता, तो भी आपका एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आपका प्रेडिक्शन देखिए 10-15 दिन ऊपर नीचे है, इवन इन केपी, even timing of events in KP, if it is out by 10-15 days, people will still call you a good astrologer. ठीक है? देखिए वीनस क्या है यहाँ, वीनस कब शुरू हुआ? एंड ऑफ लास्ट डे ऑफ नवंबर में खत्म शुरू होकर के, और कितने दिन चला है? 3-4-5 ही दिन तो चलना था इसको। इसके बाद सन शुरू हो जाता, दैट सन अगर आप यहाँ ले लेते तो 10 दिन से आगे आपका जो है उसको रिजल्ट हाथ में तो मिल जाता 3 तारीख को। यू वुड हैव गिवन हिम अ डेट ऑफ 5 दिन आगे की डेट देते, दैट वुड हैव हार्डली मेड अ डिफरेंस। उसको 8 तारीख की आप डेट देते, वो अगर 3rd को उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता, स्टिल ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एंड ही वुड हैव कम टू यू विद अ पैकेट ऑफ स्वीट्स स्टिल। ठीक है? तो
एक आध महीना भी ऊपर नीचे अगर आपका प्रेडिक्शन होता है तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल कॉल यू अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ केपी. इफ यू कैन प्रेडिक्ट प्रॉपर्ली, एकदम वे सब चीज को तौल तौल के करेंगे. टाइम टेकिंग है, सब चीज को तौल तौल के करेंगे. केपी में देखिए हर एक एंगल को कहीं भी थोड़ा सा मिस करेंगे तो प्रेडिक्शन जो है थोड़ा सा ऑफ होने का चांस है. एंड समवेयर यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन. somewhere you have to tweak one or two rules here and there. That is also a learning experience. ठीक है, चलिए इसमें कोई सवाल है तो पूछिए. नहीं है तो फिर मैं if there is no question on this, then I'll move on to the next one. जी. Okay.